اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم مائی ڈیئر اسٹوڈنٹس. آج ہم نے پہلا ٹاپک تیسرا 8واں چیپٹر لیا تھا ونڈ اسٹارمز اینڈ سائیکلونز. آج تاریخ ہے 2/6/2020، کلاس 7، سبجیکٹ جنرل سائنس. ٹاپک ہے تھنڈر اسٹارمز اینڈ سائیکلونز. چونکہ ہم نے ایک نیا چیپٹر لیا تھا ونڈ اسٹارمز اینڈ سائیکلونز، تو اس کے یہاں پر ہم نے ونڈس کے بھی بارے میں بھی پڑھا تھا، اسٹارمز کے بھی بارے میں پڑھا تھا اور سائیکلونز کے بھی بارے میں پڑھا تھا. لیکن اسی سے ریلیٹڈ تھنڈر اسٹارمز اینڈ سائیکلونز، یعنی کہ جیسے کہ آپ جانتے ہم نے پڑھا کہ ونڈس موونگ ایئر از کالڈ ونڈ، اسٹارمز طوفان، اور سائیکلونز بڑی تیز ہوا. تو یہاں پر ہم آج پڑھیں گے تھنڈر اسٹارمز اینڈ سائیکلونز. تھنڈر اسٹارمز یعنی برق و باران والی طوفان، برق و باران والی طوفان یعنی جو بجلی لاتی ہے، گرج چمک سے ساتھ تیز ہوا آتی ہے اور وہ بارش لاتی ہے. کس طرح لاتی ہے؟ پہلے ہم پڑھیں گے تھنڈر اسٹارمز اور سائیکلونز. تھنڈر اسٹارمز ڈیولپ یعنی کہ یہ کیسے آتی ہیں in hot humid tropical areas like India very frequently. اکثر یہ جو طوفانی برق و باران والی جو طوفان آتا ہے عام طور پر ٹراپیکل ریجنز، جیسے کہ ہندوستان میں بھی یہ ٹراپیکل ریجن جیسے کیرلا، یعنی کہ ان علاقوں میں ٹراپیکل ریجنز کے بارے میں ہم نے پڑھا ہے. وہ علاقے، وہ ریجنز جو خط استوا کے آس پاس پائے جاتے ہیں، یعنی ایکویٹر کے آس پاس پائے جاتے ہیں، ان علاقوں میں یہ تھنڈر اسٹارمز زیادہ آتا ہے. یعنی برق و باران والی جو طوفان آتا ہے یہ ان علاقوں میں زیادہ آتا ہے. اکثر انہی علاقوں میں پایا آتا ہے. دا رائزنگ ٹیمپریچر، جو ٹیمپریچر درجہ حرارت زیادہ آتا ہے یا ہوتا ہے، پروڈیوس اسٹرانگ اپورڈ رائزنگ ونڈس. The rising temperature produce strong upward rising winds. جو درجہ حرارت یہ ونڈس کو لاتا ہے، تیز ہوا کو لاتا ہے. These winds carry water droplets. اور بچوں آپ کو پتہ ہی ہے یہ جو تیز ونڈس ہے، ہوائیں ہیں، عام طور پر اپنے ساتھ پانی کے بخارات لاتے ہیں، اپورڈس اوپر لے جاتے ہیں. ڈراپلیٹس along where they freeze. جب یہ اٹھاتے ہیں، جب یہ تیز ہوائیں، جب یہ ہوائیں آتی ہیں، جب یہ جو درجہ حرارت ہے، جو درجہ حرارت کے ساتھ ساتھ یہ جو ہوا آتی ہے وہ پانی کے بخارات ان میں ہوتے ہیں. وہ جب وہ اوپر جو ہوا، جو تیز ہوا اوپر کو جاتی ہے اور وہاں پر یہ فریز ہوتا ہے، یعنی وہاں پر یہ جم جاتا ہے. اینڈ فال ڈاؤن اگین، اور پھر بارش کی صورت میں واپس لاتا ہے، کسی نہ کسی جگہ وہ پڑتا ہے. The swift movement of the falling water droplets along with the rising air creates lighting and sound. Lighting and sound. یہ جو مومنٹ ہے، اس کی یہ جو تیز مومنٹ ہے، اس کی جو تیز حرکات آنے جانے کا، the falling water droplets، یہ جو پانی کے بخارات along with the rising air، اور یہ جو جاتی ہوا، آتی جاتی ہوا، کریٹس لائٹنگ، جب یہ اکٹھے ہو جاتی ہے دوسری ایک جگہ سے دوسری جگہ آتی جاتی ہیں، اور وہ جب وہ ان کا چلنے سے، تیز چلنے کی وجہ سے وہ وہاں پر لائٹنگ ہوتی ہے، یعنی کہ روشنی ان میں آ جاتی ہے. اینڈ ساؤنڈس، اور آواز آتی ہے، جیسے کہ عام طور پر ہم آج بھی گرج چمک کے ساتھ عام طور پر ہم ریڈیو میں سنتے ہیں شام کے وقت کہ کل دن میں کن کن علاقوں میں گرج کے ساتھ چھینٹے پڑنے کا امکان ہے، یعنی کہ وہاں پر یہ آسمان میں تھوڑی لائٹنگ آتی ہے، وہاں پر ایک ساؤنڈ بھی آتی ہے گرجنے کی. اٹ از دس ایونٹ، ایسی نوبت آنے پر، جب اس طرح کا ماحول آ جائے، دیٹ وی کال اے تھنڈر اسٹارم، اور اسی کو ہم ایک تھنڈر اسٹارم کہیں گے، جسے ہم اردو میں برق و باران والی طوفان کہیں گے.
हाउ ए थंडर स्टॉर्म, यहाँ पर एक क्वेश्चन आता है, हाउ इन थंडर स्टॉर्म बिकम ए साइक्लोन, किस तरह एक ये बरक व बारां वाली तूफान एक बड़ी तेज तेज हवा, तूफानी हवा में तब्दील होता है। We know that water requires heat, हम जानते हैं कि पानी को चाहिए हीट, दर्जे हरारत, when it changes from liquid to vapor state, जब ये तब्दील होता है भाप की सूरत में, जब ये पानी तब्दील हो जाए भाप की सूरत में, यानी कि जैसे कि हम घर में भी पानी को गर्म करते हैं तो उसको हीट चाहे भाप बनने को, यानी कि जो उसको ये भाप बनता है उसको हीट, वहाँ पर टेम्परेचर चाहिए। Before cloud formation, the atmosphere to change into vapor, उससे पहले जब इसको ये हीट दर्जा हरारत चाहिए, उससे पहले हवा में इसको तब्दील होने को, यानी कि भाप में तब्दील होने से पहले, when water vapor changes back to liquid, जब वाटर वेपर, जब इसको वाटर वेपर जो भाप बन गया दर्जा हरारत की वजह से, तो उससे पहले जब ये बैक टू लिक्विड फॉर्म, जब ये फिर इसको लिक्विड बन जाए ऊपर, जब ये कंडेंस होता है, जब वहाँ पर ये फ्रीज होता है, जमता है, एज रेन ड्रॉप्स, यानी कि पानी की सूरत में फिर आ जाए इन द फॉर्म ऑफ रेन ड्रॉप्स, जब ये फ्रीज होता है, जब ये कंडेंस होता है ऊपर, दिस हीट इज रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर, ये जो हीट है ये एटमॉस्फेयर में ये इसकी ये जाता है हीट, दर्जा हरारत, गर्मी, द हीट रिलीज्ड इन द एटमॉस्फेयर वार्म्स द एयर, उस हवा से जो एटमॉस्फेयर है उसको गर्म करता है इर्द गिर्द, दिस एयर टेंड्स टू रेज द कॉजेज ए ड्रॉप इन प्रेशर, more air rushes to the center of the storm, more air, यानी कि जहाँ पर ये सरद जाता है, गर्म होता है एटमॉस्फेयर, वहाँ पर और सरद हवा वहाँ पर ले जाता है, और जो सरद हवा है वो गर्मी की तरफ दौड़ जाता है, और ये साइकिल चलता रहता है, यानी कि इसी तरह दिस साइकिल इज रिपीटेड अगेन एंड अगेन, ये जो साइकिल है ये इसी तरह चलता रहता है। The chain of events, in जब इस तरह की नौबत आ जाए, ends with the formation of a very low pressure system with very high speed winds revolving around it, it is this weather condition that we call a cyclone, जब इस तरह की तेज हवा आ जाए, यानी कि एक साइड में भी, दूसरे सिमत में भी, तीसरे सिमत में भी, तो उस वक़्त ये इस तरह की नौबत जब आए हवाओं की, तेज हवाओं की, तो उस वक़्त हम कहेंगे, जब इस तरह की नौबत आ जाए तो हम उस वक़्त साइक्लोन कहेंगे, यानी जो उस वक़्त जो माहौल बन जाता है वो साइक्लोन का बन जाता है। फैक्टर्स लाइक विंड स्पीड, यानी कि इसमें कौन से असरात, यानी कौन से चीज़ें जो इसमें मुज़मिर है जो ये लाते हैं, पहला है विंड स्पीड, कि कितनी जो तेज़ हवा है, जो हवा है उसके स्पीड, यानी कि उसकी रफ्तार से ये एक मुज़मिर एक हालत है। विंड डायरेक्शन, और किस सिमत में जाता है। टेम्परेचर एंड ह्यूमिडिटी कंट्रीब्यूट टू द डेवलपमेंट ऑफ साइक्लोन, यानी ये ऐसे मुहरिकात हैं, टेम्परेचर है, विंड डायरेक्शन है, विंड स्पीड है, ह्यूमिडिटी है, कि कितनी इसमें हवा में ह्यूमिडिटी है, नमी कितनी है, ये ऐसे वो जो इसमें जो इसके जिम्मेदार होते हैं साइक्लोन बनने के, बड़ी तेज हवा, तूफानी हवा लाने के लिए। A cyclone is known by different names in different parts of the world. वो इस मुल्क, इस तमाम दुनिया में ये साइक्लोन को बहुत सारे नामों से पुकारा जाता है, जैसे कि इट इज कॉल्ड ए हरिकेन इन द अमेरिकन कंटिनेंट, जो कंटिनेंट है, कंटिनेंट 7 है, तो उसमें एक अमेरिका भी कंटिनेंट है, तो वहाँ पर इस साइक्लोन को हुरिकेन के नाम से पुकारा जाता है। इन फिलीपाइंस और एक मुल्क है, एंड जापान, और जापान भी एक मुल्क है, इट इज़ कॉल्ड ए टाइफून, वहाँ पर इस साइक्लोन को, यहाँ पर अगर हम इंडिया में इसको साइक्लोन कहते हैं तो अमेरिका में इसको
हुरिकेन कहते हैं, और फिलीपाइंस में इसको टाइफून के नाम से पुकारते हैं. फॉर एग्जाम्पल, regions near the equator where cyclone exists. ये वो ऐसे इलाके हैं इक्वेटर जो ये आमतौर पर साइक्लोन या हुरिकेन उन इलाकों में आता है जो इक्वेटर खत इस्तीवा के आसपास आते हैं या होते हैं. अगर ये नॉर्थ पैसिफिक ओशियन है, यहाँ पर ये इसको जब ऐसा यहाँ साइक्लोन आ जाए तो वहाँ इसको टाइफून के नाम से पुकारते हैं. और इसी तरह नॉर्थ एटलांटिक ओशियन, यहाँ पर अगर ये आ जाए तो यहाँ पर हुरिकेन से इसको पुकारा जाता है. साउथ पैसिफिक ओशियन, यहाँ पर अगर ये आ जाए तो यहाँ पर हुरिकेन इसको कहते हैं. और यहाँ पर है इंडियन ओशियन, अगर यहाँ पर आ जाए तो यहाँ पर ये साइक्लोन कहा जाता है. इसी तरह ये बहुत सारी तबाही भी लाता है साइक्लोन, बहुत सारी तबाही लाता है. डिस्ट्रक्शन कॉज्ड बाय साइक्लोन्स, बहुत सारी तबाही लाता है ये साइक्लोन. साइक्लोन्स कैन बी वेरी डिस्ट्रक्टिव, ये बहुत तबाहकुन होते हैं ये साइक्लोन्स. स्ट्रॉन्ग विंड्स पुश वाटर टुवर्ड्स द shore even if the storm is hundreds of kilometers away. ये बहुत तबाहकुन होता है. स्ट्रॉन्ग तेज हवाएं, पुश द वाटर, ये हवा को धक्का देती हैं, टुवर्ड्स द शोर, उन इलाकों की तरफ. अगर वो वहां पर वो 1000 किलोमीटर 100 किलोमीटर अगर ये यहाँ पर दूर होगा जहाँ पर ये उठता है. These are the first indications of an approaching cyclone areas causing severe loss of life and property. और जहाँ पर ये आ जाए ये बहुत तबाही लाता है, जहाँ पर लोगों के मरने की भी, लोग वहाँ पर मरते भी हैं, एंड प्रॉपर्टी, और उनकी जो प्रॉपर्टी वो भी तबाह होती है. इट आल्सो वर्सन द फ्लड सिचुएशन, और ये अगर ये वर्सन यानी कि ये अगर ये फ्लड की, ये सैलाब की सिचुएशन लाता है. हाई स्पीड विंड्स, अगर वहाँ पर उस वक़्त हाई स्पीड विंड्स, जो ये जहाँ पर विंड्स तेज़ हवाएं भी अगर हों उस वक़्त चलती हों, accompanying a cyclone can damage houses, वहाँ उस वक़्त ये हमारे घरों को भी तबाही करता है, यानी कि उनको ढहाता है. टेलीफोन एंड अदर कम्युनिकेशन सिस्टम्स, उसको भी जो टेलीफोन तारे हैं उसको भी उखाड़ देता है, उनके खंभों को भी उखाड़ देता है. causing tremendous loss of life and property, ये हमारी जो प्रॉपर्टी है, जो एग्रीकल्चर है, जो ज़मीन है, उसको भी उसमें भी हमें बहुत तकलीफ उठाना पड़ता है, क्योंकि उसको भी ढहा लेता है. और इसके बहुत मेजर्स भी हैं. अगर ऐसा नौबत आ जाए, साइक्लोन आ जाए, तो उसके बहुत कुछ इफेक्टिव मेजर्स भी होते हैं. यानी फॉर एग्जांपल, ए साइक्लोन फॉरकास्ट एंड वार्निंग सर्विस, यानी कि पहले ही गवर्नमेंट ने बहुत ऐसे इलाके, वहाँ मेट्रो डिपार्टमेंट होता है जो पहले लोगों को इतला देता है कि फलानी जगह पर साइक्लोन आने का खतरा है, इसलिए कॉशियस रहिए, यानी कि मोहतात रहिए, एहतियात में रहिए. Rapid communication of warning of the government agencies, the ports, fishermen, ships and to general public. ये आपने भी हम भी ये सुनते हैं रेडियो में, टीवी पर या कि न्यूज़पेपर में कि कहाँ कब तक और कब ये साइक्लोन आने वाला है, ये तूफानी बारह आने वाला है, बरको बारह आने वाला है. और फिशरमैन जो कि समुंदरों में या साहिल समुद्रों के नज़दीक जो वो मछलियाँ पकड़ते हैं, उनको पहले ही आगाह किया जाता है. और जो जहाज़ होते हैं उनको भी वार्निंग दी जाती है कि आप मुहतात रहिए, एहतियात में रहिए. और इसी तरह तीसरा, कंस्ट्रक्शन ऑफ साइक्लोन शेल्टर्स इन द साइक्लोन प्रोन एरियाज एंड एडमिनिस्ट्रेटिव अरेंजमेंट्स फॉर मूविंग पीपल टू सेफर प्लेसेस. यानी कि हमें इसके लिए ऐसे शेड, ऐसे मकान, ऐसे बिल्डिंगें बनाने चाहिए जो आम तौर पर उन एरियाज में, उन इलाकों में जो आम तौर पर
इस साइक्लोन की जद में, जिनको इस साइक्लोन की जद में आने का खतरा होता है। इसी तरह एक्शन ऑन द पार्ट ऑफ द पीपल, यानी लोग क्या करें उस टाइम। We should not ignore the warning issued by the meteorological department. जो मैंने अभी उसी की बात हम कर रहे थे कि जो मेट्रोलॉजिकल डिपार्टमेंट जिनका काम ये होता है कि कब कहाँ पर तूफान आने वाला है, कहाँ पर बारिश आने वाला है, जिस तरह एजुकेशन डिपार्टमेंट का काम है बच्चों को पढ़ाना, इसी तरह ये डिपार्टमेंट है जिसका ये काम है कि कहाँ पर बारिश आ जाएगी, कहाँ पर संभावना वो पेशन गोई करते हैं, यानी हमें उनकी पेशन गोइयों को मद्देनजर रखना ज़रूरी होगा। जो आम तौर पर हम हर दिन टीवी रेडियो पर एंड रेडियो ऑन द न्यूज़पेपर, जो आम तौर पर हम रेडियो और टीवी पर हर दिन सुनते रहते हैं। दूसरा, वी शुड मेक नेसेसरी अरेंजमेंट्स टू शिफ्ट द एसेंशियल हाउस होल्ड गुड्स, डोमेस्टिक एनिमल्स एंड व्हीकल्स एटसेट्रा टू द सेफर प्लेसेस। दूसरा, हमें उन आम तौर पर जो घरों में हम चीज़ जो हमें ज़रूरियात ज़िंदगी होते हैं, जैसे कि गाड़ियाँ हैं, डोमेस्टिक एनिमल्स हैं, जो हमारे जानवर हैं, पालतू जानवर हैं, उनको उन जगहों पर हमें मुंतकिल करना चाहिए अगर इस तरह की नौबत आए जहाँ पर वो सेफ रहे। अवॉइड ड्राइविंग ऑन रोड्स, यानी कि अगर उस वक्त हमें ये रोडों पर अपनी गाड़ियाँ नहीं चलानी चाहिए। एंड कीप रेडी the phone numbers of all emergency agencies like police, fire brigades and medical centers। और हमें उस वक्त आम तौर पर उस वक्त हमें पुलिस के जो फ़ोन नंबर्स हैं, पुलिस स्टेशन के और मेडिकल सेंटर्स के और ये जो फायर ब्रिगेड्स के, आम तौर पर ऐसे हालात में इनके फ़ोन नंबर हमें होनी चाहिए ताकि हम एमरजेंसी में उनको कॉल लगा सकें और वो रेस्क्यू करने के लिए आ जाए। इसी तरह सम अदर प्रिकॉशंस इफ वी आर सिटिंग इन ए साइक्लोन हिट एरिया, और भी प्रिकॉशंस भी होते हैं, सम अदर प्रिकॉशंस। अगर हम इस तरह के नौबत में आ जाए, इस तरह के हालत ऐसे एरिया में फंस जाए जहाँ पर ये साइक्लोन आने के खतरा हो या आ जाए, तो उस वक्त हमें क्या करना चाहिए, वहाँ पर हमें क्या करना चाहिए। डिडंट ड्रिंक वाटर दैट कुड बी कंटेमिनेटेड, हमें उस इलाके का यानी कि हमें वो पानी नहीं पीना चाहिए। वी शुड ऑलवेज स्टोर ड्रिंकिंग वाटर फॉर इमरजेंसीज, हमें आम तौर पर ऐसे पानी को स्टोर करना चाहिए, अगर यानी कि इमरजेंसी के लिए हमें ये पानी स्टोर रखना चाहिए ताकि हमें इससे ये पता चले अगर कल कोई इमरजेंसी आ जाए कि हमें ये पानी जो स्टोर हमने किया होगा तो ये पानी हमें ज़रूरत आ जाए। इसी तरह डिडंट टच वेट स्विचेस एंड फॉलन पावर लाइन्स, उस वक्त हमें भीगी जो स्विचेस हैं या पोल्स हैं पावर लाइनों के बिजली के, हमें उनसे हाथ नहीं लगाना चाहिए। तीसरा, डिडंट गो आउट फॉर द सेक ऑफ फन, उस वक्त हमें यानी कि कोई मस्ती नहीं करनी चाहिए या किसी जगह नहीं सैर के लिए जाना चाहिए। चौथा, कोऑपरेट एंड हेल्प आवर नेबर्स एंड फ्रेंड्स, उस वक्त हमें कोऑपरेट करना चाहिए अपने दोस्तों को, अपने हमसायों को, यानी कि उस मुश्किल की घड़ी में हमें उनकी मदद करनी चाहिए। तो आज का टॉपिक जो हमने ये स्टॉर्म्स एंड साइक्लोन्स के बारे में, इसी के साथ ही ये जो टॉपिक है ये ख़त्म हुआ। इंशाल्लाह रहमान हम कल नया चैप्टर लेंगे। तो स्टे होम, स्टे सेफ, थैंक्स।